Okay, good morning dear students. Once again welcome to GKRP online classes for class 3 maths. Okay. So dear students, yesterday we have learned number names and expanded form of numbers, comparison of numbers, many things we have learned. So today we learn about order of numbers. Okay, order of numbers. ऑर्डर मीन्स व्हाट? ऑर्डर मतलब क्या होता है? एक वे में जाना, मतलब 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ऐसे आता है कि नहीं? सबको मालूम है? या फिर 1 के बाद 3 आता है क्या? नहीं आता, 1 के बाद 2 ही आता है, मतलब सीरियली हमें किसी नंबर को अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ नंबर्स। मतलब एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आएगा तो उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ नंबर्स को टू वे में अरेंज किया जाता है। वन इज योर असेंडिंग ऑर्डर, एंड सेकंड वन इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट? Ascending order means what? Ascending order means arrangement of number in the form of smaller to greater. Arrangement of number in the form of arrangement of numbers in the form of arrangement of number in the arrangement of numbers from smaller to larger, smaller to greater or larger. Okay, ascending order is the arrangement of numbers from smaller to greater, and descending order means arrangement of numbers from greater to smaller. Okay, so ascending order means arrangement of numbers from smaller to greater number, and descending order means arrangement of numbers from greater to smaller number. ascending means छोटा नंबर को फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा नंबर को लिखकर हम उसको अरेंज करेंगे, उसको बोला जाता है ascending order। और descending order means बड़ा नंबर को फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? छोटा नंबर को लिखते लिखते जाएंगे। तो ये होता है हमारा ascending and descending order। If you have some numbers like 1, 2, 5, 9, 6 and 7. Okay, if you have some numbers like 1, 2, 5, 9, 6, 7 and you are asked that arrange them in ascending order, then how can you arrange them? First you have to write the smallest number. Which one is smallest number among this number? सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से? सबसे छोटा नंबर है क्या? 1. So first you have to write the number, or first you have to write the smallest number, that is 1. Next larger than 1 is 2. 1 के बाद क्या आता है? 2 है larger. Next larger than 2 among these is 5. Next larger than 5, which one is coming? 9 or 6? Which one is? 6. So you have to write here 6. Next larger than 6, which number is coming? 7. Okay, you have to write here 7. Next last one is 9. So here greatest number is 9 and smallest number is 1.
नंबर इज रिवर्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ये भी हम कह सकते हैं, अगर तुम्हें कुछ नंबर दिया रहेगा उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में करना रहेगा तो तुम क्या करोगे, पहले असेंडिंग में कर दोगे, उसके बाद डिसेंडिंग अपने आप आ जाएगा, उसको उल्टा लिख देना है, रिवर्स फॉर्म में लिख देना। और डिसेंडिंग में अगर फर्स्ट करोगे तो उसको असेंडिंग में करने के लिए भी बहुत इजी है, उसको फिर से उल्टा कर दो तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में इसी तरीके से मिल जाएगा, है कि नहीं। तो देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जान गए, तो ये होता है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट कम टू द नंबर your next is your even and odd numbers. What? Even and odd numbers. Do you know about even and odd numbers? Even. What? Even and odd number. तो देखो यहाँ पर बच्चों इवन क्या होता है और क्या होता है। इवन नंबर मीन्स व्हाट? A number which can be exactly divided into two parts is called even number, and the number which cannot be divided exactly in two parts that is called odd number. तो देखो even number means the number which can be divide into equal two parts, divide into equal two parts is called even number. For example, देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 + 1 2 होता है, सो 2 इज ए इवन नंबर। नेक्स्ट वी आर टेकिंग 3, तो देखो 3 जो है इसको हम इक्वली डिवाइड कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, तो 3 हमारा क्या होगा, इवन नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट कमिंग 4 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो इक्वल होगा 2 + 2 4 आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं 4, सो 4 इज योर इवन नंबर। नेक्स्ट 6 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 + 3 इक्वली डिवाइड हो रहा है तो क्या हुआ, 3 इज योर इवन नंबर। नेक्स्ट 6 after 6 8 is coming, 4 + 4 8, so 8 is also a even number. Next 10 is also even number, 5 + 5 10, so 10 is also a even number. Like this you can easily find out all the even numbers between you can find all the even numbers, okay. Next is your odd numbers. Odd numbers. Odd numbers what? What are odd numbers? The numbers which are not even number are called odd number. तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि the number which are not an even number is called the number which is not an even number is called odd number. तो देखो जो नंबर तुम्हारा इवन नंबर नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, odd number. और the number which cannot be divided into two equal parts is called odd number. तो देखो यहाँ पर 2 जो है हम डिवाइड कर पाएंगे, 1 + 1 2 होता है। ऐसे अगर हम 3 ले रहे हैं, 3 को हम
a odd number. Next, which one? 7. Next, 9, etc. Okay, these all numbers are the numbers which are not coming under even number are called what? Odd numbers. तो देखो ये तो तुम्हारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हुआ, पर मैं तुम्हें एक और इसी तरीका बता रही हूँ जिससे तुम इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि इवन है या ऑड है। तुम्हारा इवन नंबर हमेशा क्या होता है? फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो इनमें से पहला होता है तुम्हारा इवन, सॉरी ऑड, ये हुआ ऑड, बट दिस वन इज इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड। ओके, तो देखो एक ऑड आता है, फिर इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऐसे ही होता है। तो देखो पहले क्या करना है, तो ये सिंगल डिजिट है, ये सब सिंगल डिजिट है, तो तुम इजीली वेरीफाई कर पा रहे हो कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। बट इफ यू हैव ए डबल डिजिट या फिर ट्रिपल डिजिट नंबर्स, देन हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज, how can you recognize is it even or odd number? If you have numbers like 15, okay, if you have number like 15, then you can also find out or recognize is it a odd number or even number by this process. Okay, listen. First, in one's place which digit are placed, you have to check out this. वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है उसे तुम्हें पहले चेक करना है। तो देखो वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है? 5 है, 5 है कि नहीं? तो यहाँ पर चेक करो कि 5 जो है ऑड है या इवन? क्या है 5? 5 इज योर ऑड नंबर, सो दिस होल नंबर इज आल्सो ए ऑड नंबर। ओके, तो जितना भी बड़ा नंबर रहे तुम्हें क्या करना है? पहले लास्ट डिजिट वंस प्लेस में जो डिजिट होता है उसको तुम चेक आउट करोगे और उसके बाद वो लास्ट डिजिट ऑड है या इवन है तुम्हें मालूम करना पड़ेगा, तब जाके वो नंबर ऑड है या इवन पता चलेगा। ओके, नाउ आई एम टेकिंग ए लार्ज नंबर लाइक 456। ओके, सो हियर you have to check out the ones place digit is a odd or even number. So ones place digit 6 is a odd or even number. Now look here, 6 is a which number? Odd or even? Even. So this whole number is also a even number. Okay, तो देखो ऐसे करके तुम बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन सा नंबर है ऑड है या इवन। अगर तुम्हें बहुत बड़ा नंबर दिया जाए जैसे कि 5, 9, 6, 2, 1, 0। Okay, so here last digit is your what? 0. 0 is also coming under even number. This has no value, but if we combine the two digits 10, then 10 is a what? Even or odd number? Even number. So this whole number is a even number. Okay, like if we are taking a number like 4661, here last digit is 1. Then find out check out the last digit. 1 is a odd or even number, 1 is a odd number. So this whole number is a odd number. Okay, and this one is even number. Okay, so students, you understand or not? This is very easy way to find out the number which are odd and which one is even number. So तुम्हें क्या करना है, ये 1 से लेकर 9 तक तुम्हें क्या करना
using 1 2 5 9. Okay, sorry, 259. This is a numeral. 259 is a numeral. If we read them like 259, then this one is a number. So we made a number 259 by using this digit. Okay, again we are making some numbers like 746, 746 and 100. We can also repeat one digit more than one times. Okay, कोई भी डिजिट को हम कितने बार भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक डिजिट को बस तुम्हें एक बार ही यूज करना है। कोई भी डिजिट को तुम जितने बार भी यूज करोगे उतना बड़ा तुम्हें नंबर मिलेगा। अच्छा, तो देखो ये डिजिट्स को लेकर तो तुम नंबर फॉर्म कर सकते हो। 9596, 548, 133, 999, 1000, 564, 892. Like this you can make many numbers. Okay, now if you have given some specific digit and you are asked that to make a number by using these digits, then how can you make a number? देखो यहाँ पर अगर तुम्हें कुछ डिजिट दिया है, 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 9 दिया गया है। ओके, 2, 5 and 9 is given and 6 also. Okay, 6 also given, and you are asked that you have to make a 4-digit number by using this digit. तुम्हारा नंबर में कितना डिजिट होना चाहिए? 4 डिजिट होना चाहिए। तो तुम इसमें से कोई भी एक नंबर, बहुत सारे नंबर फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि 2596, 2596, again 5962, 5962, again 6592, 6592। इन बहुत सारे नंबर तुम फॉर्म कर सकते हो इससे। हाँ, तो ये तो बहुत सारा नंबर होगा, but if you are asked that you have to make a smallest number. What? Smallest number and greatest number. अगर तुम्हें बोला जाए ये
by digits is complete. Next is your coming and rounding whole numbers. What? Next we will learn rounding whole numbers. Okay, numbers को हम राउंडिंग करेंगे, राउंड अप करेंगे. तो देखो राउंड अप मतलब क्या होता है? राउंडिंग होल numbers. Okay, so dear students, if you are asked to rounding a numbers, first you have to write the 9 digits. We all know we have 9 digits, 9 single digits. Okay, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now first we divide these digits in two parts. Okay, two parts. First part, in first part, which digit are coming? 1, 2, 3 and 4 is coming under in your first part. And in your second part, which digit are coming? In second part, you have to keep 5, 6, 7, 8 and 9. In first part you have to keep 1, 2, 3, 4 and in second part you have to keep 1, 5, 6, 7 and 8 and 9. Okay. Now rounding off. Rounding off means what? अगर तुम्हारे पास कुछ 99 रुपीज है, कितना 99 रुपीज है, तो तुम ये कह सकते हो कि मेरे पास 100 रुपीज है, मीन्स ये 100 रुपीज के आसपास है कि नहीं? तो तुम कह सकते हो कि मेरे पास 100 रुपीज है, बस वन कमी हो गई, 1 रुपीज की कमी हो गई. तो देखो कोई भी नंबर कौन सा नंबर के पास है उसे बोला जाता है क्या? उसका राउंडिंग ऑफ करना. देखो मैं फर्स्ट में ले रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. Okay, there is up to 20. Okay, so here look at this number line. This is a number line and here I written 1 to 70. 70 means there is 20 up to 20. Okay, but यहाँ पर देखो हमें क्या करना है? 8 को राउंड ऑफ करना है. क्या करना है? नहीं 8 को नहीं लेते, हम लेते हैं 12 को राउंड ऑफ करना है. कितने को? 12 को राउंड ऑफ करना है. तो देखो हमें टेंस प्लेस को हमें फर्स्ट देखना है. टेंस प्लेस कौन सा है? ये एक टेंस प्लेस है, 20 10 आ रहा है. नेक्स्ट इधर एक होगा 20 होगा. तो देखो ये 12 जो है इसके पास है, नियरेस्ट टू व्हिच नंबर? 10 और 20. नियरेस्ट टू व्हिच नंबर? 10 और 20. 12 जो है 10 के पास है या 20 के पास है? इधर देखते हैं 12 जो है 1, 2, 3, 4, 5, 7, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट के बाद क्या होगा? सॉरी 8 नंबर्स को क्रॉस करने के बाद वो 20 में पहुंचेगा. पर यहाँ पर देखो एक नंबर को क्रॉस करने के बाद 10 में पहुंच जाएगा. तो ये जो 12 जो है किसके नियरेस्ट है? 10 के या 20 के? तो 10 के पास है, 20 बहुत दूर है, तो इसको हम किसके साथ राउंड ऑफ करेंगे? 10 के साथ. 12 is equal to 12 is round up to what? 10. Okay. Next, if you are asked 5 is round up to 10 और 20, तो देखो यहाँ पर 15 जो है इधर भी इक्वल डिस्टेंस है, इधर भी इक्वल डिस्टेंस होगा. 20 तक के लिए उधर भी इक्वल डिस्टेंस होगा, इधर भी 5 होगा, उधर भी 5 होगा. बट 15 जो होता है उसको हम कहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं?
in your number, then it is round up to backward. And if your numbers, last numbers coming under in your second part like 5, 6, 7, 8, 9, then it is round up to forward. Okay, समझ में आया? देखो ये नंबर जो है इधर तो उतना डिस्टेंस से आएगा, उधर तो उतना डिस्टेंस से आएगा, पर जो ये 15 जो है, 5 जो है, ये सेकंड पार्ट में आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, उधर फॉरवर्ड राउंड अप करेंगे. ओके, नाउ आई एम टेकिंग सम एग्जांपल लाइक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. अच्छा देखो, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का ये बता रही हूँ. अगर तुम्हें दिया जाए 46, ओके, 46, इसको हमें राउंड अप करना है. ये कौन सा नंबर के अंदर आ रहा है? 40. दिस नंबर इज कमिंग अंडर 40 to 50. Yes or no? This number is coming under 40 to 50. तो हमें देखना है 40 से राउंड अप करना है या 50 में राउंड अप करना है, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा. देखो पहले क्या करोगे, लास्ट डिजिट को देखना है. लास्ट डिजिट कितना है? 6 है. 6 है कि नहीं? तो देखो 6 जो है हमारा फर्स्ट पार्ट में है या सेकंड पार्ट में? कौन सा पार्ट में है? सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में रहने से क्या होता है, उससे पहले वाला नंबर क्या हो जाता है, +1 हो जाता है. तो देखो सेकंड पार्ट में है 6, तो इससे पहला वाला डिजिट कौन सा है? 4 है. तो 4 में +1 कर देंगे तो कितना होगा? 5. 4 is your 5. If we add 4 1 to 4, then we will get 5. 5 हुआ नहीं. नेक्स्ट बाकी का जितना रहेगा हो गया जाना 0. 6 is 0. So your number 46 is round up to 50. हुआ क्या नहीं? ओके, नेक्स्ट हमें ये फॉरवर्ड बैकवर्ड में हम ले रहे हैं लाइक 33. 33 is a number. So first we have to check the last digit. Last digit is how much? 3. Then check out that the last digit is coming under first part or in second part. Last digit is coming under first part or second part. Last digit is coming under 3 is coming under first part. So first तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 1 प्लस करना नहीं पड़ता है, तो क्या करोगे, यहाँ पे करना नहीं है प्लस, जितना है उतना ही लिखना है. कितना है? 3 है. So you have to write 3 and this 3 becomes 0. So your round up कितना हुआ? 33 is round up to 30. ओके, तो देखो ऐसे करके तुम सभी नंबर्स को राउंड अप कर सकते हो. बहुत इजी है कि नहीं? फर्स्ट में डिजिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 1 2 3 4 फर्स्ट पार्ट में आएगा, सेकंड पार्ट में 5 6 7 8 9 आएगा. नेक्स्ट लास्ट डिजिट को तुम्हें क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा पार्ट्स में आ रहा है. 6 is coming under second part, so you have to add. If your last digit is coming under second part, then you add 1 to that previous digit. 6 का previous digit है 4, तो 4 में 1 प्लस कर दिए तो कितना है? 5. So 5 and 0 50. 6 के लिए बाकी का नंबर को क्या करना है? 0 डाल देना है. हुआ. और अब क्या करना है, इसमें देखो 3 जो है फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में आने से हमें +1 करना नहीं पड़ता, जितना रहता है उतना ही लिखना है. नेक्स्ट 3 becomes 0. Okay. Okay dear students, now we learn about Roman numerals. तो रोमन न्यूमेरल्स क्या है मालूम है क्या तुम लोगों को? नहीं मालूम ना? अच्छा, तुम्हारे क्लास का स्टैंडर्ड का देखो ऐसा लिखा रहता है. क्लास 1 के लिए I, क्लास 2 के लिए II होता है कि नहीं? क्लास 3 के लिए I, 4 के लिए I and V, 5 के लिए V, ऐसे लिखा रहता है. तो इसका मतलब क्या है? ये 1 है, 1 and 1 2, 1 1 1 1 3, 1
For 1 I, for 2 double I, for 3 triple I. Okay. For 4 IV, for 5 V, for 6 VI, for 7 V double I, for 8 V triple I. Okay. For 9 IX, for 10 X. ओके, तो देखो यहाँ पर I के लिए 1 के लिए I है सिंगल I, 2 के लिए डबल I, 3 के लिए ट्रिपल I, 4 के लिए IV क्यों है? देखो 5 हमारा 3 है, 5 is 3, so if we minus 5 minus 1, how much we will get? 4. तो देखो V के लिए 5 and 1 के लिए 1 माइनस, देखो इससे पहले है तो इसलिए हम इसको क्या किए माइनस किए। 4 माइनस 5 माइनस 1 4 हुआ, तो IV हुआ 4 हुआ, सो 4 इज IV, नेक्स्ट 5 इज V, नेक्स्ट 6 इज VI। हाउ इज इट? 5 प्लस 1, इधर रहने से माइनस, इधर रहने से प्लस होता है। ओके, सो 5 प्लस 1 6, नेक्स्ट 5 V means 5 plus 2 is your 7, समझ में आया? नेक्स्ट 8 V means 5 plus triple I means how much? 3, so we will get 8. next like this x means 10 होता है, तो देखो इधर रहने से माइनस होता है, इधर रहने से प्लस होता है, तो ये x जो है 10 है, तो 10 minus 1 is your 9, तो ये क्या हुआ? Ix means 9, okay, and x means 10, ये तो 10 है। नेक्स्ट ओके, तो इस तरह से तुम 1 से लेकर 10 तक तुम्हें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा रोमन न्यूमेरल्स। एंड देखो हमारा फर्स्ट है 1 5, हमारा 1 5 10 50 100 एंड 1000 में तुम्हारा चेंजेस आता है। फर्स्ट 1 के लिए होता है तुम्हारा I, उसके बाद कोई भी रोमन न्यूमेरल्स फर्स्ट 3 टाइम्स रिपीट होता है। नेक्स्ट I डबल I ट्रिपल I आया 3 के बाद, नेक्स्ट 5 में क्या 5 में चेंजेस आया V, नेक्स्ट 50 में चेंजेस आया क्या L, नेक्स्ट 100 पर 100 C एंड 4000 M। ओके, तो देखो ये जो है अच्छा 10 कर for 5 V, for 10 X, और एक है 500 for 500 D and for 1000 M। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा सिमिलरली ये चलता रहता है, 5 में चेंजेस आता है, नेक्स्ट 10 में चेंजेस आता है, नेक्स्ट 50 में, नेक्स्ट 100 में, नेक्स्ट 500 में चेंज होता है, नेक्स्ट इज योर 1000 प्लेस। तो देखो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, इसके लिए हमारा ट्रिक है, क्या है? माय डियर कैट plus extra vitamins intensely। My dear cat love extra vitamins intensely। देखो M for mind, D for dear, C for cat, L for love, X for extra, V for vitamins and I for intensely। तो ये फॉर्मूला को अगर तुम याद कर लोगे तो कहाँ पर क्या चेंजेस आता है तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। देखो M जो होता है 1000 के लिए होता है, नेक्स्ट
डी जो होता है डियर, सी कैट, नेक्स्ट डी जो एल जो होता है दैट इज फॉर 50, नेक्स्ट एक्स 10, नेक्स्ट वी 5 एंड आई 1। ओके, तो इसी तरह से तुम लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करना। ओके, घर पे अप टू 1 to 20 तक रोमन न्यूमेरल्स लिखने के लिए ट्राई करना। हुआ प्लस प्लस करके, जैसे कि 10 फॉर 10 यू हैव टू राइट x, फॉर 11 कैसे लिखोगे, 10 में 1 प्लस हुआ है, 10 प्लस 1 हुआ है, तो क्या होगा x and 1, x and 1 xi। नेक्स्ट 12 के लिए क्या होगा, 12 में कितना प्लस हुआ है, x प्लस 10 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे x डबल i, हुआ कि नहीं, 13 10 प्लस 3 इज नेक्स्ट x ट्रिपल i। वैसे 14 के लिए 10 प्लस 4 है, तो क्या करोगे 10 के लिए x एंड 4 के लिए कितना है i भी, तो x i ऐसा 20 तक प्रैक्टिस करना। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज ओवर and I hope you will understand everything. Okay, okay, bye, bye, have a nice day, thank you.